ان دونوں میں سے صحیح کون ہے؟ آپ سننا چاہتے ہیں؟ کون کون سننا چاہتے ہیں؟ لیکن ایک شرط ہے کہ بعد ہی سناؤں گا، اس لیے کہ ایسی ویسی زمین پر نہیں بیٹھے ہو، مرکز مراکز اہل سنت پر بیٹھے ہو، جہاں ہند کا ہر ولی اپنی گردن جھکا کر آتا ہے، اس آستانے کرم کے قریب بیٹھے ہوئے ایک وعدہ کرنا پڑے گا آپ کو، جب میں فرمان رسول اللہ اسی وقت سناؤں گا جب آپ یہ وعدہ کرو۔ آپ کہیں بھائی کوئی ایسا ویسا نہیں بھائی، مثال کے طور پر ایک بات حضرت مولانا معین الدین صاحب نے کہی، ایک بات علامہ ازہری صاحب نے کہی، ایک بات مفتی نور العین صاحب نے کہی، پھر ایک بات جو ہے علامہ سید امین القادری نے کہی، اور پھر ایک بات حضرت علامہ مہدی حسن چشتی اشرفی نے کہی۔ تو اب بتائیے کہ جتنے بھی چھوٹے لوگوں نے بات کی، پھر ان کی بات کے بعد پھر بات کی گنجائش، یہی اصول ہے نا بھائی۔ وہ لوگ، چلو میں آپ کو دنیاوی اعتبار سے سمجھاؤں، سیشن کورٹ، پھر ہائی کورٹ، پھر ہائی کورٹ میں بھی جب معاملہ نہیں جائے تو پھر سپریم کورٹ میں بھی اگر کوئی چیز، تو پھر ایک آپشن ہوتا ہے ہمارے قانون میں، اور وہ ہوتا ہے راشٹرپتی کا قلم، اور پھر اس کے بعد نہیں ہے نا، پھر قانون کی گنجائش نہیں نا۔ ایسے ہی ایمان والوں کے نزدیک بھی یہی ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ جب نبی کچھ کہے، اب جب رسول اللہ کا فرمان سن لیا تو رسول اللہ کے بعد اب ملا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وعدہ کرتے ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی عالم ہو، حضور سے بڑا تو کوئی نہیں نا، حضور کے قول سے بڑا قول تو کسی کا نہیں ہو سکتا نا۔ تو اب میں قول رسول پیش کر رہا ہوں، اور میرا رسول کون ہے؟ وہ بندہ نواز کیسو دراز سید محمد چشتی حسینی گلبرگوی، انہوں نے تو پوری ایک کتاب لکھی ہے جوامع الکلم۔ حضور کی شان یہ کہ جو کروڑوں تقریر میں بات ادا نہ کر سکے، میرے نبی ایک کی ضرورت نہیں ہے، نبی کا فرمان ہمارے لیے عین ہے۔ اور نبی نے یہ بھی کہا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان میرا روح دھارن نہیں کر سکتا، میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ اتنے بڑے عالم دین نے یہ بات لکھی ہے، اور یہ جو کتاب کا حوالہ میں نے پیش کیا ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ صرف اہل سنت اسے معتبر مانتے ہیں، اہل بدعت کے وہاں بھی اس کتاب کا بڑا مطلب ہے۔ اب سنیے، جب سوال ہوا کہ موسیٰ مظہوری نے کہا یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ یہ جو پوری دنیا میں میلاد مناتے آپ کے دیوانے گھوم رہے ہیں، آقا آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو میرے نبی نے جواب میں ارشاد فرمایا، من فرح بنا فرحنا بھی، جو مجھ محمد کی میلاد کی خوشی میں خوش ہے، میں محمد اپنے ان غلاموں سے خوش ہوں۔ کس لیے شرمائے ہوئے کیا بزم کربا کے گلائے کیا بزم کربا کے گلائے ہوئے ہیں
سیرت تیری دیوی کیونکہ سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں پڑھیے صلی اللہ علیہ یا اللہ امام علیہ سنت کا کلام ہے محبت سے بڑے سبحان اللہ ایسے نہیں ذرا اونچا سبحان اللہ زمین و زمان تمہارے لیے بکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے بکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے پڑھنے دو جانا تمہارے لیے اے مجھ گئے تخلیق کائنات تیرے سر سے جا 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 تیرے سر سے جا 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 اشارے سے چاند چھپ دیا چھپے ہوئے ان کو کر دیا کو پسند کیا کو پسند کیا
جناب چشتی شریح جانی آخری میرے حضور میرے سجاد پاک بٹن گلیا کہاں کہاں ہوئے چلوار آگری بھیا پرسیات گزروں ادھر غریب کھڑے ہو ادھر غریب چوکھٹ پر چوکھٹ پر تقدیر بنانے آیا تقدیر بنانے آپ لوگ ساتھ پڑھ سکتے ہیں تقدیر بنانے اونچا تقدیر بنا لے اسی طرح میرے ساتھ بھی کر تقدیر بنانے Jai
اللہ تعالیٰ اس مرد قلندر نے جو چھوٹی سی مختصر عمر کے اندر اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طریقہ کار پر چل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مختصر زندگی میں انشاءاللہ بتاؤں گا گلپوش ہو رہی ہے حضور سید گلے گلزار نشیت حضرت سید مہدی میاں صاحب قبلہ، سجدہ نشین حضور سلطان غنی نواز حضرت سید امین القادری صاحب کی گلپوشی فرما رہے ہیں اور دستار بندی بھی فرما رہے ہیں۔ سید محمد صاحب قادری کی بھی گلپوشی حضور سید محمد مہدی میاں صاحب قبلہ فرمائیں گے، اور ہمارے جو نعت خواں خصوصی ہیں عالی جناب ہمارے برادر اکبر حضرت قاری جاوید صاحب قادری، ان کی بھی گلپوشی حضرت سید صاحب قبلہ فرمائیں گے۔ خواجہ کا ہندوستان، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور نام ہے عطرت رسول اللہ۔ وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. قال سيد الكونين صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون يقال إنه مجنون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. غوث اعظم بمنی بے سرو سما مدد قبلہ مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم دست مرے خدا مدد بکردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات کشتی وحق خواجہ عثمانی ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. منبر پر جلوگر مخدوم گرامی قدر حضرت علامہ سید مہدی میاں صاحب قبلہ چشتی نظامی اشرفی، گدی نشین آستان عالیہ عرش مقام سلطان الہند سرکار غریب نواز، جملہ سادات کرام حاضرین محفل پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندان غریبوں کے غمگسار فقیروں کی سرور شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دھولا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرائے خوباں سیاح لامکا وجہ کل فتح در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و
جانو دل اصفیا مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں. اگر آپ تھک نہیں گئے تو سب مل کر بلند آواز سے پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہے بلبلے پڑتی ہے کلمہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، آئی بدت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا، ماہ سنت مہر اطلاع دے لے بدلا نور کا، یہ جو مہر و ماہ پر اطلاق آتا نور کا، بھی تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ لما نور کا، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سکتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، چاند چھپ جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کاف کے سو ہاتھ من گیا وہ آنکھیں عین صاد، کاف آیا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا. آج کی یہ محفل مرکز مراکز اہل سنت سرکار عبد الولی معین ملت والدین خواجہ معین الدین چشتی حسنی حسینی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے دیار میں ان کے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے میلاد کے موقع پر انعقاد پذیر ہے. آپ نے مجھ سے پیشتر مخدوم گرامی قدر حضرت علامہ سید مہدی میاں صاحب اور ان سے قبل حضرت مولانا سید محمد قادری صاحب اور بھی دیگر لوگوں سے آپ نے خطابات سماعت کر لیے ہیں. وقت زیادہ ہوا ہے، میں سیدھے میلاد شریف پڑھتا ہوں کیونکہ بہت سے عنوانات کی طرف اشارہ کرنے کا حکم ہے. حضرت سید شاہد میاں صاحب قبلہ نے بھی اور سید القمش میاں صاحب نے جو جو ملتا رہا سب کچھ نہ کچھ کہتے رہے، اس پہ بھی بولتے اس پہ بھی. یہ رشتہ بھی ایک کہتا ہے میں نے اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دیا، دوسرا کہتا ہے میں نے قبول کیا، دونوں نے مل کر کے بنایا. لیکن کچھ رشتے ایسے ہیں کہ اللہ اکبر جو انسان نہیں بناتا بلکہ قدرت بناتی ہے، اور ان رشتوں میں سے رشتہ ہے وہ محمد الرسول اللہ کے امتی ہونے کا رشتہ. اللہ کے رسول علیہ السلام میلاد کی محفل میں آنے والوں مصطفیٰ جان رحمت جب دنیا میں تشریف لائے، اللہ اکبر ہر سجدہ کرنے والا جب سجدہ کرتا ہے تو سبحان ربی العالی کہتا ہے. حضور نے بھی پوری زندگی سجدے میں سبحان ہے تو اتنی عبداللہ کہتے ہیں، اور جب میرے نبی پیدا ہوتے ہیں تو رب حبلی امتی کہتے ہیں، رب حبلی امتی کہتے ہیں. اللہ اکبر جس نبی کو ہم سے اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے، اتنی الفت ہے کہ پیدا ہوتے ہوئے رسول اللہ نے فرمایا رب حبلی امتی. اور کیسے فرمایا؟ کھڑے ہو کر نہیں فرمایا، بیٹھ کر نہیں فرمایا، لیٹے لیٹے نہیں فرمایا، بلکہ حالت سجدہ میں فرمایا رب حبلی امتی. کتنا پیار کرتے ہیں حضور، کتنی محبت کرتے ہیں حضور، اس لیے محبت بھی لازم ہے. حضور مخدوم گرامی نے اشارہ کیا رسول اللہ کی محبت
का, हुजूर के इश्क का, उन्हीं की गुफ्तगू मैं उनके बाद लेकर के आगाज करता हूँ। अल्लाह अकबर। वैसे ज़बान मेरी है, बात इन्हीं की होगी। वक्त की किल्लत की वजह से हज़रत ने गुफ्तगू नहीं की, तबीयत की अलादत की वजह से हज़रत ने गुफ्तगू नहीं की। मगर मुसलमानों सुन लो, हमसे कोई इतना प्यार नहीं करता जितना आमिना के लाल करते हैं। बल्कि एक बात कह दूं, अरे जिस दिन समझ जाओगे हुजूर को कि खुदा जिससे प्यार करता है वो रसूल तुमसे प्यार करता है, तुम खुदा के महबूब हो, इससे बड़ा मुकद्दर क्या हो सकता है? महबूब खुदा के महबूब हो तुम, इसको महसूस तो करो। तुमने बच्चों की मोहब्बत को महसूस किया, तुमने भाइयों की मोहब्बत को महसूस किया, तुमने दोस्तों की मोहब्बत को महसूस किया, सबकी मोहब्बतों में तुमने क्या क्या कुर्बान किया? मेरे अजीजों बताओ तो सही, क्या हुजूर की इस मोहब्बत को भी हमने कभी महसूस किया? कभी महसूस नहीं किया, हमने कभी महसूस नहीं किया। दुनिया में आए तो उम्मती कहते, दुनिया से तशरीफ ले गए तो उम्मती कहते हुए पूरी जिंदगी उम्मती कहते रहे। अल्लाह अल्लाह, ये हुजूर की मोहब्बतें हमारे साथ है, लेकिन हमने सबकी मोहब्बत की तरफ तवज्जो दी, आका की मोहब्बत की तरफ तवज्जो नहीं दी। आओ हुजूर से प्यार करें, हुजूर से मोहब्बत करें। एक वाकया मुफ्ती आजम मक्का इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह का पेश करके फिर अपने उन्वान की तरफ पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर। ये मिलाद मुस्तफा क्या है? याद रखना, लोग कहते हैं मिलाद क्या है, मिलाद क्या है। मैं तो चूंकि सूफिया का गुलाम हूँ, हमारा मसलक सूफियों का मसलक है। हम गाली नहीं देते लेकिन दलील जरूर देते हैं। लोग कहते हैं नबी आ रहे हैं तो तुम क्यों जश्न मना रहे हो? मैंने कहा पहली बात तो नबी अकेले नहीं आए थे, पहली बात तो नबी अकेले नहीं आए। कुरान कहता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। जो लोग समझ के अब तवज्जो फरमाए, मिलाद सुनने बैठे हो तो याद रखना, एक तो ये कि मिलाद पूरी दुनिया में पढ़ा जाता रहेगा, मगर उसके कदमों में बैठ के मिलाद सुन रहे हो जिसने 90 लाख को मिलाद वाले रसूल का गुलाम बनाया है। ये जमीन जिस तरीके से गरीब नवाज हिंदुस्तान के हर वली के सरदार है, वैसे अजमेर मुकद्दस तमाम शहरों का सरदार है। यहाँ के लोगों की बात अलग होनी चाहिए, यहाँ के लोगों का नाम अलग होना चाहिए। अल्लाह अकबर। मदीने मुनव्वरा का सबसे पावरफुल स्टेशन अगर हिंदुस्तान में कोई है तो उसी अजमेर मोहल्ला का आता है। यहीं से महलौनी भी चलता है, यहीं से दिल्ली भी चलता है, महबूब इलाही की शक्ल में यहीं से पाक पटन भी चलता है, यहीं से दरिया भी चलता है, यहीं से मालेरा भी चलता है, यहीं से कायमी भी चलता है, यहीं से देहा भी चलता है, यहीं से किचौजा भी चलता है। और बरेली में शुगी को शमाल रही है, वो गरीब नवाज के करा का सकता है, जहाँ से पैगाम मिला है उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा वैसे काम, लिल्लाहि हम तो दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैज़ाने ताए रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी बड़ी हस्ती के कदमों में बैठे हैं जिसने पूरे हिंदुस्तान में इश्क की आग लगाई। लोग जुल्म की आग लगाते हैं, गरीब नवाज इश्क की आग लगाने आए थे। जुल्म की आग लगती है तो आबादियां दीवाने में तब्दील हो जाती है, और इश्क की आग लगती है तो दीवाने आबाद हो जाते हैं। गरीब नवाज उस इश्क का अजीम सफीर है जिसने मोहब्बतों की आग लगाई है। एक जुल्म की आग लगती है तो मुर्दा जिंदा मुर्दा हो जाता है, और इश्क की आग लगती है तो मुर्दे दिल जिंदा हो जाया करते हैं। गरीब नवाज ने इश्क की आग, और गरीब नवाज की तो शान थी, आंख बंद करके रहते थे। मेरे ख्वाजा ने हमेशा आंखें बंद रखी और आंख खोलकर जिसको देख लिया उसको मकाम विलायत अता हुआ। बस एक जुमला यहाँ पर अर्ज करना चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले। जब गरीब नवाज किसी को नजर करते थे
हवाले से। सबक तो चूंकि आमोख्ता को सुनाना मुर्शिद को है, लेकिन साथ आपको भी चलना पड़ेगा। हम सारे चिश्ती लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं, और मैं कहता हूं सिर्फ चिश्ती नहीं, जो बंदा शरीफ है जिसने हिंदुस्तान की सही तारीख पढ़ी उसको पता है कि गरीब नवाज आंखें खोल कर नहीं रहते कि आंखें बंद करके। लोग कहते हैं आंखें खोल बेचो। मैंने कहा जिनके दिल की आंखें खुल जाती है वो माथे की आंखें बंद रखना खोले रखना उसका कोई माना नहीं होता है। हाँ, तवज्जो आपकी है, नौजवानों की बुजुर्गी तवज्जो चाहता हूं। सारे चिश्तियों का इस पर इत्तेफाक है, हम सुन्नियों का चिश्तियों का, कि गरीब नवाज आंखें बंद करके बैठते थे। जिसको आंख खोल के नजर भर के देख लिया फिर उसको आम आदमी नहीं रहने दिया, उसको वली बना दिया। वली क्या बना दिया? वली बना दिया। मैं ये बात कहता हूं, मेरे नाम के साथ कादरी है और मुझे अपनी कादरियत पर नाज है कि कादरी हूं, शुक्र है रब्बे कदीर का, दामन है मेरे हाथ में पीरान पीर का। लेकिन कादरी कट्टर कादरी होने के बाद भी मैं पूरे अजमेर शरीफ में नहीं, हम जगह देखकर बोली नहीं बदलते, इसलिए कि जगह देखकर बोली बदलना ये मुनाफिकों का काम है। हम मुनाफिक नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी मैं कहता हूँ, नक्शबंदी हो, सोहरवर्दी हो, कादरी हो, रफाई हो, मदारी हो, हिंदुस्तान में अगर रहता है तो सबसे पहले चिश्ती है, बाद में सब कुछ है। इसलिए कि हमें जो दीन मिला है वो गरीब नवाज के सदके में मिला है, और हम लोग इस एतबार से चिश्ती है कि गरीब नवाज की छतर छाया में रहते हैं। इसीलिए तो किसी से डरते नहीं, क्योंकि गरीब नवाज जिन ऊँटों को दिखा देते हैं, हुकूमत उन ऊँटों को उठा नहीं पाती। गरीब नवाज से पहले दिन बताया, अगर मैं जानवर बिठा दूं तो लोग उसको उठा नहीं सकते। मदीने के दीवाने बसा दूं तो लोग उनको कैसे उठा सकते? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बात अपनी है, लेकिन बस बात से सुभान अल्लाह। गरीब नवाज की चौखट पर बात करने लगा। अभी मुफ्ती आजम मक्का की बात अब बाद में होगी, अब पहले मेरे मुर्शिद की बात होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि सारा मुफ्तियां इकराम सर आंखों पर है, लेकिन ये अजमेर का कलंदर जो है ना, ये मुफ्तियों का मुफ्ती, ये बहुत बड़े मुफ्ती थे गरीब नवाज, शायद ये तारुफ आपको हो जाना, बहुत बड़े मुहद्दिस थे। और हदीस का दर्स कहाँ देते थे पता है? मस्जिद नबवी में बैठकर दर्स हदीस देते थे। मस्जिद नबवी का मुहद्दिस हमें मिला है गरीब नवाज की शक्ल में। ये तो तुम्हारा दिमाग बाद में खराब किया अंग्रेजों की साजिश ने, कि जो वली होता है वो चरस पीता है। ये बात मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात रख दूं, अंग्रेजों की साजिश थी वलियों से दूर करो। तवज्जो, मैं बहुत नाजुक बात पर आ गया हूं, लेकिन आगे बढ़ता हूं। वलियों से दूर करो, सैयदों से दूर करो, उलमा से दूर करो, दीन से दूर करो। ध्यान देना, तवज्जो करना। हाँ, बच्चों बहुत प्यारे बच्चे, मेरे मुर्शिद के शहर के बच्चे बहुत। हाँ, एक आवाज में दो बेटा, इधर से एक तकरीर, एक आवाज में उसमें बेटा, दोनों तरफ से आवाज आएगी तो मुनाजरा होगा, तकरीर नहीं होगी। तवज्जो इधर फरमाएं। हाँ, बात कहीं से निकलती है, मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूँ कि अंग्रेजों ने साजिश रची, वलियों से दूर करो, नबियों से दूर करो, दीन से दूर करो, उलमा से दूर करो, तो सैयदों से दूर करो। जिन चीजों के करीब होने से मुसलमानों को पावर मिलता था इमामी, उन सबसे दूर करो। तो क्या किया? कहा कि वली असली के मुकाबले में नकली खड़े करो, ताकि इनको देखकर असली मशकूक हो जाए। असली सैयदों के मुकाबले में नकली सैयद खड़े करो, ताकि इन नकलियों को देखकर असली से लोग मुतनफ्फिर हो जाएंगे। असली उलमा से दूर करने के लिए नकली उलमा पैदा करो, ताकि नकली उलमा की हरकतों को देखकर असली उलमा से लोग बदतम हो जाएंगे। ये साजिश की गई दीन से दूर करने के लिए। सच्चे दीन के मुकाबले में कच्चा
कब्रिस्तान में बैठ कर भंग पीने वाले को कभी वली नहीं कहा गया, खिलाफ शरअ अमल करने वाले को कभी वली नहीं कहा गया, इसलिए कि दो नशे एक साथ होते ही नहीं, दो नशे एक साथ। ये तहकीक पेश कर रहा हूं, वरना कोई साइंस पढ़ा हुआ मेरे सामने आकर के बैठे, नशा एक ही होता है, दो नशे कभी एक साथ नहीं होते, एक ही नशा होता है। और याद रखना, अगर एक भारी नशे के बाद हल्का नशा किया वो तो असर ही नहीं करेगा, और अगर हल्के नशे के बाद भारी नशा किया तो हल्के का असर खत्म होकर भारी का चढ़ेगा। तो चूंकि वली कभी भंग, चरस, गांजा, शराब नहीं पी सकता, अरे सच्चा मोमिन नहीं पी सकता, वली क्या पी सकता है? मैं सैयदुल औलिया फिल हिंद की चौखट पे बैठकर, और वो भी अजमेर मुअल्ला के मेरे ख्वाजा के सच्चे जानशीन की मौजूदगी में, इनकी तारीफ के साथ कह रहा हूँ कि दो नशे एक साथ नहीं हो सकते। वली तो पहले ही इसके रसूल के नशे में मस्त होता है, उसको इस नशे की हाजत क्या है? ये गंदगी के नशे की ये अंग्रेजों ने साजिश की थी। आलिम कौन होता है? इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। आलिम तो तवज्जो करना, जिसके दिल में खशियत है वो तो अपने पड़ोसी को भी अपने बराबर नहीं कहता, वो तो अपने बाप को भी अपने बराबर नहीं कहता। जो आलिम होगा, अल्लाह का खौफ रखने वाला, कभी नहीं कहेगा कि मेरा बाप मेरी तरह है। ये अल्लामा नूरुल हक साहब अज़हरी जामे अज़हर के फारिग है, कभी सुना ही से कि मेरे अब्बा मेरी तरह। क्यों? आलिम है, और आलिम के दिल में अल्लाह का डर होता है, और जिसके दिल में अल्लाह का डर होता है वो किसी की बराबरी का दावा नहीं करता। अभी मखदूम ने क्या कहा? मैं सबसे छोटा आदमी हूँ। ये बात सच है? बोलो भाई, पतन सच नहीं, लेकिन ये बात को हम झूठ नहीं कहते, इसलिए कि झूठ वो होता है जो खिलाफ वाक़या हो, सच वो होता है जो वाक़े के मुताबिक हो, उसके दरमियान एक आजिज़ी और इंकिसारी का पहलू होता है। आज मेहदी मियां सरकार ने कह दिया मैं तो सबसे छोटा थी हमारे शहर में का, न मैं आलिम, न पीर, न मुफ्ती, न सूफी, कुछ नहीं। हालांकि ये बात नहीं, लेकिन उन्होंने आजिज़ी की। तो क्या नूरुल हक में उठकर कहेंगे कि मेरे अब्बा कुछ नहीं उन्होंने कहा, तो क्या मैं अब्बा के बराबर या अब्बा से अफजल मैं उठकर कहूंगा कि मेरे मखदूम ने कहा मैं कुछ नहीं? तो क्या ये बात होगी? क्यों? ये बात उस वक्त तक होती है बराबरी की जब आदमी हमारा फिक्र होता है, हमारा ज़हन होता है, यकशल्लाह की मंजिल में फाइज होगा, तो चोर को भी देखकर कहेगा ये चोर मुझसे बेहतर है, मैं इससे ज्यादा हकीर हूँ। क्यों? बताने का उसको तौबा की तौफीक हो जाए। इसलिए कि ऐसे भी तो हुए हैं कि मैं खाना छोड़कर काबे के मुजावर बन गए और लाखों हदीस के हाफिज बनकर बिश्रे हफी कहलाए। ऐसे तो है ना, लूटने वाले तो ज़ैन अयाब बने, मकाम विलायत पर फाइज हुए। तो जब तक के ईमान पे खात्मा न हो, अल्लाह वाला कभी किसी की बराबरी का दावा नहीं करता। तो मेरे भाई, जब दिल में खशियत इलाही हो तो बाप की बराबरी का दावा नहीं होता, तो दिल में खशियत इलाही हो तो रसूल पाक की बराबरी का दावा कैसे हो सकता है? इसीलिए तो हम कहते हैं असली उलमा के मुकाबले में नकली को खड़ा किया ताकि वो रसूल की बराबरी का दावा करे और सारा मामला खराब करे। लेकिन अल्लाहु अकबर, जिन्हें अंग्रेजों ने पैदा किया वो क्या कहते हैं? हम नबी की तरह, नबी हमारी तरह। और जिनको रसूलुल्लाह ने आलिम बनाया वो कहते हैं, जिनको इल्म मिला बाबे मदीना इल्म की चौखट से, वो कहते हैं हम क्या बराबर हो सकते हैं? सरवर कहूँ कि मालिक को मौला कहूँ तुझे, बाबे खलील का कुले सेवा कहूँ तुझे, इल्मा नसीब हो तुझे उम्मीद के कहूँ, जाने मुराद जाने तमन्ना कहूँ तुझे। अल्लाह ने तेरे जिसमें मुनव्वर किताब से, अल्लाह ने तेरे जिसमें मुनव्वर किताब से, जाने 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 तजल्ला कहूँ तुझे। सुबह वतन पे शामे गरीबा को तू शरफ बेकस नवाज के सुनो भाला कहूँ तुझे। अपने बराबर नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है? मुजरिम हूँ, अपने अफ़्व का सामा करूँ शहा, यानी शकील रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे। और कहते हैं तेरे तो बस को बेतनाही से है बड़ी, हैरान हुए शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे? और कह रहे हैं सब कुछ उनके सदा खाती खामोशी, जो बोला हमें कहते मैं क्या क्या कहूँ तुझे? लेकिन
माशाअल्लाह। सच्चे आलिमों के मुकाबले में ऐसे निकाले, सच्चे सैयदों के मुकाबले। सैयदों की पहचान थी, जब शजरे पहचान न कराए तो सैयदों की पहचान थी, वो भूखे रहकर दूसरों को खिलाते हैं, वो मानते नहीं दूसरों को देते हैं, रह के पापों में गरीबों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। उनके चेहरे देखकर खुदा याद आता, लेकिन बात गड़बड़ की ताकि इनको मांगता देखकर, इनको लूटता देखकर, इनको छीनता देखकर, इनको गलत काम करता देखकर असली से लोग बेजार हो जाए। वली के मुकाबले में नकली वली पैदा किया और सच्चों के मुकाबले में कच्चे उलमा पैदा किए और अच्छे दिन के मुकाबले में कच्चे दिन पैदा किए। और वो कच्चे दिन शक डालते हैं नबी को अपनी तरह, नबी को तो गैर का इल्म नहीं। एक बात कहूँ, अरे मेरे सीने में कितना इल्म है मैं जानता हूँ, अगर आप जान ले तो ये आपके लिए गैब है, आप जान ले तो आपके लिए गैब है। मेरे सीने की बात तुम जानो तो ये गैब है, तो रसूल पाक को इल्म गैब नहीं तो तुमको कैसे गैब का इल्म आ गया कि रसूलुल्लाह को ये नहीं पता, नबी को ये नहीं पता, नबी को ये नहीं पता। नबी गैब नहीं जानते, तू गैब जानता है। याद रखना, ये कच्चे दिल की निशानी है। कच्चे दिल में क्या है? अल्लाह अकबर। नबी तो मर के मिट्टी में मिल गए। मैंने कहा जालिम, जो जान से ज्यादा करीब है वो मर के मिट्टी में कैसे मिलता? सिर्फ एक बात पूछता हूँ, सारे 73 सिर्फ इस बात पर मुत्तफिक है कि नबी अल्लाह के महबूब है, बोलो है कि नहीं है? सब मुत्तफिक है नबी अल्लाह के, बोलो नबी अल्लाह के। अगर जिंदा मजमा है गरीब नवाज के शहर में तो बोलो नबी अल्लाह के, नबी अल्लाह के। तू तेरे महबूब को नहीं मार डाल के मिट्टी में मिलाता, वो अपने महबूब को मार के मिट्टी में कैसे मिलाएगा? अरे जो महबूब का गुलाम हो जाए खुदा उसका कफन भी मैला होने नहीं देता। जब गुलाम होगा कफन मैला नहीं होगा तो महबूब की जिंदगी का आलम क्या होगा? तू जिंदा है अल्लाह, तू जिंदा है अल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। बारा नुमान मुसरा, ये कच्चा दीन जो इजाद किया, इसमें का लड़ाओ मुसलमानों को, इनसे लड़ के कामयाब नहीं हो सकते। लड़ाओ मुसलमानों को, लड़ाओ, नबी की शान में तौहीन करके लड़ाओ, वलियों की शान में तौहीन करके लड़ाओ, सहाबा की शान में तौहीन करके लड़ाओ। इनके पास ऐसी गड़ी गड़ी बातें पेश कर दो, होटल पे बैठे तो दीन की बात ना हो, झगड़े की बात हो, ऐसी बात हो, वैसी बात हो, वैसी बात हो। तो लेकिन हम सच्चे लोग क्या कहते हैं? हम चिश्ती सुन्नी, कादरी सुन्नी, बरकाती सुन्नी, नकवी सुन्नी, अशरफी सुन्नी, मनारी सुन्नी, वापसी सुन्नी, सब जो सुन्नी है। गरीब नवाज की शान ये है, अक्सर आंखें बंद रखते थे और जब आंख खोल कर किसी को गौर से देख लेते तो उसको वली बना देते थे। सरकार की सीरत में सबका इत्तेफाक है, किसी को इख्तिलाफ चले, अगर इख्तिलाफ हो तो हाथ उठा दे तो मैं किताबों के हवाले पढ़ूं। बोलो भाई कोई इख्तिलाफ रखता है इससे? मैंने कहा ये बात छोटी है यार, गरीब नवाज किसी को देख के वली बना दो, ये बात छोटी है। गरीब नवाज के लिए बहुत छोटी है, वो क्या क्या बना दे, क्या क्या बना। अरे मेरे मखदूम जो इनके गुलाम है ना, मखदूम अशरफ जहांगीर सिंह नाम, उन्होंने उनके दरवाजे पर रहने वाले मिट्ठू को हाफिज कुरान बनाया था। इनका गुलाम है ना मेरा मुर्शिद, मेरा मखदूम, तोते को हाफिज कुरान बनाया। बिल्ली को इतनी मार्फत दे दी जितना 1857 के बाद वाले मुल्कों को मार्फत नहीं है। अशरफ सिद्दीक़ की बिल्ली को इतनी मार्फत थी, रोजाना जितने मेहमान आते थे बावर्ची बिल्ली के पास आके खड़ा होकर के सुनता था ये कितनी बार आवाज दे रही है, जितनी बार आवाज देगी उतने मेहमान आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। एक बार हो ऐसा गया कि जितनी बार बिल्ली ने चिल्लाए तुम्हारी बिल्ली नहीं, ये मेरे मखदूम की बिल्ली है। मैं मानता हूं कि लोगों को ये बात हजम नहीं होगी, लेकिन अहले बिदअत से मैं कहना भी नहीं चाहता, मैं तो अहले सुन्नत से कहना चाहता हूं। मैं तो मुखातिब हूं इस मजमे से, ये तुम्हारी बिल्ली नहीं है जो तुमने पर्शियन बिल्ली पाल रखी है, तो शर्म की बात है। माँ को रोटी के टुकड़े को तरसाते हो और बिल्ली के लिए मौज से खाना लाते हो। ये क़यामत की निशानियों में से निशानी है। माँ का बिस्तर घर के बाहर रखा है और बिल्ली को सीने से लगा के सोते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये वो बिल्ली नहीं है, ये वो बिल्ली है जो मेरे मखदूम की बिल्ली है। एक दिन बिल्ली ने आवाज लगाई और उससे ज्यादा मेहमान आ गए। बावर्ची पर
मखदूम साहब ने घूरा लोगों को बताने के लिए कि हमारे मुरीदों को नाप तोड़ न किया करो, हमारे दरवाजे पे जानवर भी बड़े होशियार होते हैं। मखदूम साहब ने बावर्ची को घूरा, रोटी कम लगाई, और सरकार मेरा क्या कसूर है, ये दिल्ली को जो अपनी ड्यूटी दे रखी थी, जितना चिल्लाई तो उतना महंगा खाएंगे, एक ज्यादा आया। मखदूम साहब ने कहा तूने गड़बड़ की बिल्ली, पहली तो बिल्ली बातें नहीं समझती, लेकिन ये मेरा मखदूम है, बोलने वाला मखदूम, सुनने वाली मखदूम की चौक। खानकाहों की बिल्लियां ऐसी है, खानकाहों के मुखालिफ मुन्ने ऐसे नहीं है जैसे खानकाहों की बिल्लियां हैं। इसलिए खानकाहों से जुड़े रहो। लोग इसीलिए खानकाह की मुखालफत करते हैं कि खानकाह में जानवर भी इतने समझते हैं। ये बात मैं तमहीद के तौर पे कह रहा हूँ, आगे मुझे आप अभी तो आधा घंटा हो गया, आधे घंटे में पूरी महफिल पढ़ देना है और जल्दी पढ़ दूंगा, बहुत देर नहीं, इम्तिहान में नहीं रखूंगा। लेकिन मैं बात करने लगा हूँ, मखदूम की बिल्ली ने आवाज लगाई, मेहमान एक ज्यादा, वो बिल्ली सारे फकीरों की गोद में आके बैठी, उसको देखा सूंघा, आगे बढ़ी, उसको देखा सूंघा, आगे बढ़ी, उसको देखा सूंघा, एक गोद में गई और जाकर उस पर पेशाब कर दिया। मखदूम की बिल्ली ने पेशाब किया तो उसने कहा मैं भी फकीरों में हूँ, अल्लाह वालों में, मुझे भी खाना दो। मखदूम ने कहा उठो, तुम मुसलमान नहीं हो। ये बहुत बड़ा जुमला मैंने कहा, ये महसूस करने वाले, अगर मैं लोग को कहता हूँ कि ये बात खानका में कहता तो लोग उठ करके करते, लेकिन ये खानका ही है, इनका नूर से देखता है, कोई मुझे पहचान न सका, सबको धोखा देकर आ गया। अशरफ तुम्हारी खानका में भी आया था, लेकिन जब तुम्हारी किसी को धोखा न दे सका तो तुमको धोखा कैसे दे सकता हूँ। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, ये अशरफ शिमला की बिल्ली है। एक मर्तबा सांप चला गया देख के अंदर, जिसको तवज्जो से देख लिया उसको परी बना दिया। जब करीम नवाज की नजर तैयार है, यहाँ जितने मुसलमान है हाथ उठाना, जिसका अभी नहीं पहले हाथ सुन दो लो बात, फिर हाथ उठाना। जरा आप भी सोच समझ के ऐसी अंधी अकीदत न किया करें। ये मौलाना वही कह रहे थे कि सैयद साहब के नाम पे तौबा करो, हमारे नाम पे कोई नहीं आया, सब मिलाद वाले मुस्तफा के नाम पर आए हैं या करीम नवाज के नाम पर आए। हमारी औकात क्या, हमारे जनाजे में 4 लोग आए तो हमारी मेराज हो, वरना कौन आता है। हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक, इसलिए हमारे नाम पे कोई है। कभी मत बोलना कि फुला के नाम पे, कोई मुखरिज के नाम पे नहीं आता, कोई नाजिम के नाम पे नहीं आता, कोई नाखा के नाम पे नहीं आता। जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते। अजमेर शरीफ में मैं ये बात पढ़ने लगा हूँ, तवज्जो करना, अजमेर मोहल्ला वालों, करीम नवाज ने जिसको देख लिया तवज्जो से, उसको बरी बना दिया। बोलो वली जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में? अब हाथ उठाइए ये बोल करके, बोलो क्या वली जहन्नमी हो सकता है? बोलो क्या वली जहन्नमी हो सकता है? बोलो क्या वली जहन्नमी हो सकता है? वली शराब पी सकता है, वली ज़िना कर सकता है, वली पड़ोसी का हक मार सकता है, वली की बीवी पे जुल्म कर सकता है। जो सच्चा वली होगा वो किसी पे जुल्म नहीं करेगा, हराम नहीं खाएगा। अरे करीम नवाज ने जिसको एक बार तवज्जो से देख लिया उसको जन्नती बना दिया, वली बना दिया। जब ये नवासे की नजर आ रहा है तो नाना मुस्तफा जाने रहमत में अबू बकर को देख के क्या बना। तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। फारूक आज़म को देखकर क्या मकाम अता किया होगा, उस्मान गनी को देखकर क्या मकाम अता किया होगा, मौला अली को देखकर क्या मकाम अता किया होगा। मुझे हैरत है इस बात पर, करीम नवाज की नजर तो मार गए, उनके नाना की नजर मत मानोगे। और जो नाना को नहीं माने और नवासे को माने, नवासा उसको कबूल नहीं। लोग पागल है तो ये बहस करते हैं कि सहाबी जन्नत में जाएगा कि नहीं। मैंने कहा ये उलमा सूफिया की मौजूदगी में मेरे एक जुमले का जिम्मेदार मैं हूँ। सहाबी को जन्नत की तलाश नहीं है, अबू बकर उमर की तलाश जन्नत को है।
जन्नत तमन्नाई है कि जब तक ये नहीं आ जाते मैं मुकम्मल नहीं होती। इसलिए कि अल्लाह पर सिद्दीक और फारूक के ईमान पे बहस करने वालों और उनको गालियां देने वालों, हम तुमसे ये बात करना चाहते हैं, जो जन्नत में जाएगा जाएगा। अबू बकर उमर तो अभी भी जन्नत में आराम कर रहे हैं। अगर नबी का हुजरा जन्नत नहीं है तो खुदा के सच्ची कसम से जन्नत किस चीज का नाम है? अल्लाह अल्लाह, ये जन्नत खैरात है मुस्तफा जाने रहमत की गली। जन्नत क्या चीज है मेरे भाई? नबी की गली की खैरात को जन्नत कहते हैं। बल्कि अगर किसी को इश्क हो जाए तो वो कहता है मैं क्या करूं ये जन्नत लेकर। सैर गुलशन कौन देखे, दश्ते तैबा छोड़कर और सूए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़। आप कैसे सहाबा अगर जन्नती नहीं है तो जन्नती कौन है? यहाँ बात आई तो मैं अर्ज करूंगा। मुझे आज चले मैं पढ़ता हूँ, जिससे इश्क होता है उसकी हर चीज से प्यार होता है। बस बात अब खत्म होने लगी है। मिलाद नहीं पढ़ता मौलाना, पीर किसी में चलिए सुन लीजिए। अगर शायद में साहब ने अल्तमश में साहब ने इशारे दिए थे उस पर बात करूँ। चलिए बात खत्म करते हैं। जिससे इश्क होता है उसकी हर चीज से प्यार होता है और उसकी किसी चीज से प्यार न करना ये मुनाफिकत है, प्यार नहीं है। अगर नबी से इश्क है, नबी के असा से भी प्यार है। अगर कोई नबी से इश्क का दावा करके असाए मुस्तफा की तौहीद करे वो मुनाफिक तो हो सकता है, आशिक नहीं हो सकता। जो नबी से इश्क करेगा वो नबी की नारायण से भी प्यार करेगा। जो नबी से इश्क का दावा करे, नबी के नारायण से इनकार करे, मुनाफिक तो हो सकता है, दज्जाल हो सकता है, आशिक नहीं हो सकता। महबूब की अच्छी से, अरे महबूब के दर के कांटों से भी प्यार होता है। बल्कि आशिक कहते, सुनिए क्या कहते आशिक, उनके शहर के खास बस अजमेर मोहल्ला वालों समझ लो आशिक की तबीयत क्या होती है। उनके शहर के खास कशीदा है। किसमें कशीदा किसको कहते? नाराजगी। वैसे वो फुला और फुला में कशीदगी हो गई, मतलब नाराजगी हो गई। आशिक क्या कह रहे हैं? मदीने के कांटे मुझसे नाराज क्यों है?